Yes, good morning students. Welcome back again to the 11th class CS classes. In the last class, we are discussing about the language translator and we have already discussed about the compiler, that is the first language translator, second one is the interpreter. And now we have to discuss the third language translator, that is the assembler. And in the last class, we already discussed that compiler and interpreter both are used to convert the high level language to the low level language. High level language जो है वो user की language होती है, that is used by the user, English language, mathematical digits. Low level language is binary language, that is 0 and 1. लेकिन high level language और low level language के बीच में भी एक language होती है, that is the middle level language. So what is the middle level language? Middle level language is a combination of high level language and low level language. एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कुछ पार्ट यूजर का होता है यानी हाई लेवल का होता है और कुछ पार्ट लो लेवल यानी बाइनरी फॉर्म में होता है, दैट इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल, इफ वी राइट एन इंस्ट्रक्शन ऐड 5, 10, तो इसमें ये कंप्लीट लैंग्वेज जो है वो यूजर की फॉर्म में है, दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज. अगर मैं लिखता हूं ऐड 5 की बाइनरी लिखता हूं, दैट इज 101, 10 की बाइनरी 1010, so that instruction is middle level language. इसमें ऐड जो है वो यूजर की फॉर्म में है जबकि ये डिजिट्स जो हैं बाइनरी फॉर्म में है. तो some instruction in the form of the user language and some instruction in the form of the machine level language, so that combined language is known as the middle level language. Middle level language को हम assembly language भी कहते हैं. Now what is the assembler? Assembler एक अकेला ऐसा language translator है that convert the middle level language to the low level language. Because the reason behind that, आप चाहे high level language use करें, आप चाहे middle level language use करें, but system only understand the low level language, that is the machine level language. इसलिए हमें ऐसे language translator की requirement पड़ी जो high level language as well as middle level language को low level language में convert करते हैं. So compiler and interpreter both are used to convert high level language to low level language, but only the assembler used to convert the middle level language to low level language. तो assembler जो है अब बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है. Mostly we are using the compiler and interpreter. So that is the concept of compiler and interpreter. Now come to the next topic or the next chapter of your book, that is operating system. Now what is the operating system? Operating system क्या है? Operating system एक सॉफ्टवेयर है. उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. जब हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था तो सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू द 3 मेन कैटेगरी. द फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द थर्ड वन इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. If we discuss about the system software वो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी जिसके बिना कोई भी अदर सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा, आपका हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा. सो दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है और इसको इंस्टॉल किया जाता है ओवर द सिस्टम सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कॉम्बिनेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दैट इज द हाइब्रिड फॉर्म. हाइब्रिड मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टम एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इट इज नॉट कंप्लीटली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट इज नॉट कंप्लीटली अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन बिना इसके भी काम चलता है, तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें हम, एंटीवायरस काफी सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर ना भी यूज करें तो भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं. सो ऑल दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो सॉफ्टवेयर जिसे हम पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर फील्ड पर अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है. होटल मैनेजमेंट सिस्टम इज ओनली अप्लाइड एट द होटल. Library management system is only applied at the library. School management system is applied only the school purpose. So all these are the category of the software. Now operating system is a category of system software.
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी बिना इसके काम नहीं चल सकता। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू फुलफिल the requirement of other software. So operating system is a system software that is used to fulfill the requirement of other software. और दूसरे पर्पज से बात करें, होता क्या है, दैट इज योर हार्डवेयर। ये आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, एंड दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द यूजर। और यूजर जो है डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इंटरेक्शन कर सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से कमांड लेता है और हार्डवेयर से वो कमांड परफॉर्म कर पाता है, टास्क परफॉर्म करवाता है। सो वी कैन डिफाइन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरमीडिएट एजेंट, एक इंटरमीडिएट एजेंट है, इज एन इंटरमीडिएट एजेंट that works between user and hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट एजेंट है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में वर्क करते हैं, दैट इज हार्डवेयर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर यूजर वर्क करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज एन इंटरमीडिएट एजेंट जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में है और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराने का काम करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कराएगा, दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस क्लास। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता होगा। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेव एज अ मेन कंट्रोलर ऑफ योर सिस्टम। हमें पता है कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन सीपीयू के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर है, हमारा दिमाग जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो ऐसा काम करता है। इसी तरह सीपीयू भी बेकार है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। Operating system is the main controller and it will control input output device। जितनी भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको मैनेज करने का काम करता है, इसलिए हम कहते हैं इसका जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज द आईओ मैनेजमेंट। आईओ मैनेजमेंट मींस इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। सेकेंड फंक्शनैलिटी इज द प्रोसेसर मैनेजमेंट। जो आपका प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसको मैनेज करना, प्रोसेस को डिवाइड करना, दैट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द थर्ड फंक्शन इज द स्टोरेज मैनेजमेंट। जो आपकी मेमोरी है उसको भी मैनेज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली परफॉर्म थ्री टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी। द फर्स्ट वन इज द आईओ मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज द प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज द स्टोरेज मैनेजमेंट। इसके बाद सबसे पहली जो फंक्शनैलिटी है दैट इज द आईओ मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहली फंक्शनैलिटी है आईओ मैनेजमेंट। आपके सिस्टम में जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं दैट आर यूज्ड टू फीड द डेटा विद इन द कंप्यूटर सिस्टम एज वेल एज आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू आप अपने डेटा को डिस्प्ले कराते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो जितने भी आपके इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, उन सबको मैनेज करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैनेज करने का मीन्स है यहाँ पर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना। सिंक्रोनाइजेशन का मीन्स है पहले इनपुट जाएगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी एंड देन यू विल गेट ओनली आफ्टर दैट द आउटपुट। ऐसा ना हो इनपुट की लाइन लग जाए, प्रोसेसर प्रोसेस ना कर पाए और आउटपुट जनरेट ना हो पाए। सो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। So operating system manage all input device like the keyboard, mouse, scanner, webcam, microphone, OMR,
optical mark reader, OCR, optical card reader or character reader, MICR, magnetic ink character reader, and so on. DCR, barcode reader, and so on. Output device like the display device, that is known as VDU, visual display unit, that is monitor, LED, CRT, LED, LCD, TFT, printer, plotter, speaker. So all these input device as well as output device will manage by the operating system. That is the first functionality of the operating system. Now come to the second functionality. The second functionality of the operating system is to manage the processor. The second functionality is processor management. एंड प्रोसेसर को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है, अपने दिमाग को मैनेज करने जैसा है। उसके लिए हमें क्या होता है, अगर हमें एक साथ कई सारे काम मिल जाते हैं, हम उन सारे कामों को एक साथ नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली प्रोसेसर मैनेजमेंट भी कुछ इसी तरह से है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी शेड्यूल बनाता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।